Good morning, dear student. How are you? I hope you are fine. So now, today we will start your fifth standard subject previous one. New lesson, but interesting. Lesson number 4, environmental balance. Today, student, you know the environmental balance. That means the environment. Do you know environment? What is environment? Environment means the surrounding or conditions in which a person, animal or plant lives or operates. Do you know the surrounding or conditions in which a person, animal or plant lives or operates? That means in simple ways we will say environment means our surrounding. आप सिंपल वर्ड में कह सकते हो कि इन्वायरमेंट अर्थ क्या होता है, और सराउंडिंग हमारे आसपास जो फैली हुई चीज़ें हैं. सराउंडिंग में एनिमल्स में कैट, डॉग, प्लांट, ट्रीज, वाटर, एयर, सनलाइट एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें हैं, इट्स ऑल ऑफ दिस इंक्लूड इन आवर इन्वायरमेंट. ये सब साथ ही हमारे इन्वायरमेंट में इंक्लूड है. टुडे स्टूडेंट, यू नो द व्हाट इज एनवायरमेंट. आप एनवायरमेंट समझ चुके हो. इसके साथ ही जो एनवायरमेंटल बैलेंस है, तो इसके बारे में हम डिटेल में जानने के लिए अपने टेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं. तो नाउ ओपन आवर टेक्स्ट बुक एंड लुक एट द टेक्स्ट बुक. So dear student, now observe this picture. अब इसे ऑब्जर्व करिए. What do you see in this picture? आपको इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? We see many animals and plants with some human beings present in this picture. तो जिसमें आपको इस पिक्चर्स में बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारी चीज़ें ह्यूमन बीइंग मतलब मानव रहित आपको दिखाई दे रही हैं. Some animals are present in land. Some animals are present in land, like a cow, dog, rabbit, goat, etc. And some plants are like the trees, grass, etc. Now some others are living in a water like a fish, crocodile, and someone are in the air like a butterfly, bird, etc. तो स्टूडेंट, जो ऑब्जर्व आपने इस पिक्चर ऑब्जर्व किया, आपने देखा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली आपको. इट्स ऑल ऑफ दिस द पार्ट ऑफ द आवर इन्वायरमेंट. ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारे इन्वायरमेंट की एक पार्ट है. तो स्टूडेंट, बट before of this, it find different living things in a different places. That means different types of living things are seen in different places. आपको different तरह के living things जो भी प्लांट है, एनिमल, सबको different प्लेस पर मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, and regular living things are different. And polar bear you find in polar region, and camel you find in the desert region, and elephant, lion, deer, etc. find in the forest region. क्योंकि फॉरेस्ट रीजन में को मिलते हैं. That means the variety we seen, you see here, the variety we see in all the living things that belong to a particular area is called the biodiversity of that place. So dear student, this means, you see the variety we see in all the living things that belong to a particular area is called the
biodiversity of that place. So first dear student, you know what is the biodiversity? Today student, bio means life and diversity means variety. That means biodiversity or biological diversity is the diversity of life and variety. You also say the diversity means variety. Variety in life of different places called बायोडाइवर्सिटी. आपको डिफरेंट प्लेस पे जो डिफरेंट वैरायटी मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, वैरायटी इन लाइफ ऑफ डिफरेंट प्लेस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. एंड बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ. जो बायोडाइवर्सिटी है एग्जिस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ, आपको अर्थ पर हर जगह मिलेगी. That means in forest, in desert, in water, inside rock, in ice, everywhere. कहीं भी हो, फॉरेस्ट में हो, डिजर्ट में हो, वाटर में हो, इनसाइड रॉक में हो, या फिर इन आइस एवरीवेयर, या फिर आइस में हो, बर्फ में हो, तो हर जगह क्या मिलेंगे, बायोडाइवर्सिटी को मिलेंगे. मीन्स लाइफ वैरायटी, आपको जीवन में जो लाइफ की वैरायटी है वो आपको एवरी प्लेस, आपको हर प्लेस पर वो मिलेगी. एंड बायोडाइवर्सिटी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन अर्थ. बायोडाइवर्सिटी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन द अर्थ. थर्ड स्टूडेंट, नेक्स्ट वन इज द which one of the places visited shows greater biodiversity. It means the question is there, who studies the biodiversity? Who studies the biodiversity in particular area? Today student, that means to study the biodiversity of a place, scientists make a large number of observations. To study the biodiversity of a place, scientists make a large number of observations. थोड़े स्टूडेंट जो बायोडाइवर्सिटी है, जो प्लेस पर बायोडाइवर्सिटी जो जीव विविधता मिलती है, साइंटिस्ट मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. इसके लिए जो साइंटिस्ट होती हैं वो बहुत ही लार्ज नंबर में उसको ऑब्जर्वेशन मतलब परीक्षण करते हैं. एंड दे मेक दिस ऑब्जर्वेशंस इन डिफरेंट कंडीशन सच एज डे एंड नाइट, इन डिफरेंट सीजन एक्सेट्रा. दे मेक दिस का ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन है डियर स्टूडेंट, इन डिफरेंट कंडीशन में, जैसे कि डे एंड नाइट, दिन और रात में हो, या फिर इन डिफरेंट सीजन मीन्स कहीं पर समर है, कहीं पर विंटर है, ऐसे डिफरेंट सीजन में हो तो फाइंड करते हैं. एंड दे यूज स्पेशल डिवाइसेस टू मेक ऑब्जर्वेशन ऑफ लिविंग थिंग्स that are found at great height or depth as well as of microorganisms. Dear students, they use special devices to make observation of living things. वो ये लिविंग थिंग को ऑब्जर्व करने के लिए, पता करने के लिए स्पेशल डिवाइस का यूज करते हैं. are found at great height और डेप्थ, और उसे फाइंड करने के लिए, ग्रेट हाइट मतलब कितनी ऊंचाई, कितना डेप्थ है, सबको फाइंड करने के लिए वो एक स्पेशल डिवाइस का यूज करते हैं. दैट मीन्स अभी आप हाइट पे देखो, ग्रेट हाइट में हिमालय हुआ या फिर माउंटेन्स हुए वहाँ पर, एंड डेप्थ में इन द सी लेवल, समुद्र के अंदर,
इन सबको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। हु ऑब्जर्व, साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट ऑब्जर्व ऑल ऑफ दिस एंड दे मेक लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो क्या करती हैं, इन सबको एक लार्ज मतलब बहुत लार्ज नंबर, बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन करते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम दे कीप ऑन टेकिंग द ऑब्जर्वेशन एंड नोट डाउन ऑल द डेटा। वो क्या करते हैं, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक दे कीप ऑन टेकिंग द ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसके ऊपर जो डेटा बनता है, जो उसका इंफॉर्मेशन मिलता है, उसे नोट डाउन करते हैं। एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ मेनी साइंटिस्ट आर ब्राउट टुगेदर एंड स्टडीड अगेन। इसके साथ स्टूडेंट जो ऑब्जर्व करते हैं, मेनी साइंटिस्ट, बहुत साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते हैं, वो अपने साथ ब्राउट होना खुद के साथ लेके भी आते हैं और उसको वापस से स्टडी अगेन, उसे दोबारा से उसका क्या करते हैं, स्टडीड करते हैं। एंड ओनली व्हेन ऑल सच एफर्ट्स आर मेड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन वी बी श्योर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ प्लेस। क्या कहते हैं, ओनली व्हेन ऑल सच एफर्ट, ये सारे एफर्ट के बाद, मेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय बनने के बाद, कैन बी श्योर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लेस, उसके बाद जो श्योर होते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है, जो वैरायटी लाइफ की, वो उस प्लेस के लायक है या नहीं, वो उस प्लेस पर यहाँ पर रहती है। तो स्टूडेंट, डू नो द बायोडाइवर्सिटी। एंड नाउ next one is the environment. You also see in the environment in blackboard, but in detail about in our textbook. So dear student, you see here the environment. What is environment? You also say meaning of environment, but one time repeat, the surrounding and the conditions in those surroundings which affect the life of the organisms, they are together known as their environment. It includes many components such as sunlight, air, water, soil, plant and animal, etc. आपको पहले बताया था स्टूडेंट, it includes in our environment. In our environment includes many components such as the sunlight, means sunlight आपको पता ही होगा, जो सन से लाइट मिलती है हमें, air, water, you also know the water, soil, plant and animal, and different types of plants and the different types of the animals, you know, the cat, dog, elephant, tiger, just now. And next, the living and non-living things are dependent on each other. Living and non-living things are dependent on each other. तो इसमें मैं आपको पहले बताया था कि ऑल ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, जो भी जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लांट, एनिमल्स and non-living things, that means the sunlight, air, water, soil, etc. चाहे non-living things हैं, it's all of the dependent on each other. ये सब क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ये सब एक दूसरे पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। and there is a lot of give and take of interaction between them. There is a lot of give and take of interaction between them. इनके इसमें क्या है, बहुत बड़ा ज़्यादा गिव एक्शन इंट्रैक्शन होता है, जिसको क्या कहते हैं, मतलब इंट्रैक्शन करते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस स्टडीज दिस इंटरएक्शन। इन्वायरमेंटल साइंस स्टडीज दिस इंटरएक्शन। जो हमारा इन्वायरमेंटल साइंस है
उसने इस इंटरेक्शन के बारे में क्या है स्टडी किया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद सम पिक्चर्स, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, उसके बाद हमें लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में देखना है, पहचानना है, उनके बारे में कुछ समझना है कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंट है। तो डियर स्टूडेंट, लुक एट द पिक्चर। So dear student, you see in some pictures of the plant, animals and anything, so it's better. What is different? The difference of all of this is it's a living and non-living thing. इसमें कुछ लिविंग थिंग्स हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अब वो क्या है वो हमें देखना है। तो फॉर एग्जाम्पल ऑल ऑफ द लाइफ, जो भी लाइफ है, जितनी जीवन है वो क्या है लिविंग थिंग। एंड देयर इज नो लाइफ, जहाँ पर लाइफ नहीं है जिसके अंदर, वो क्या है नॉन लिविंग थिंग। तो स्टूडेंट सी दैट गिवन द बर्ड, ग्रासहॉपर, स्नैक, रैट, फिश, टाइगर, इट्स ऑल ऑफ दिस इज ए लिविंग थिंग। वाई? इट्स ऑल इन लाइफ। इन सब में क्या है जीवन है, इन सब में क्या है जीवन है, लाइफ है, इसके लिए क्या है लिविंग थिंग। एंड समाज कटा ट्री, यहाँ पर क्या वो कटा हुआ पेड़ है, मत इसमें लाइफ नहीं है। यहाँ पर क्या है वाटर, यहाँ पे आपको वाटर दिख रहा है जो कि रेन ड्रॉप हो रहे हैं। एंड सम ऑफ द यहाँ पे क्या आपको दिखाई दे रहा है स्टोन, अच्छा आपको दिखाई दे रहा है, स्टोन दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आपको देखेंगे यहाँ पे ये क्या होगा, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स, इनमें लाइफ नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट वन इज द काउ। You also see in the cow is life is a living thing. Next is in the caterpillar. There's in the water को पॉन्ड तालाब में वाटर जमा हुआ है, क्या नॉन लिविंग थिंग। जितने भी लाइफ आपको यहाँ पे इसमें लाइफ है, ये आपको देखिए यहाँ पे काइट है, यहाँ पे क्रेन है, एलिफेंट, इट्स ऑल ऑफ दिस ये लाइफ है, लाइफ है लिविंग थिंग। And given the sunlight, mountain, it's a non-living thing. So expand, you see the living things and non-living things. कुछ समझ में आया लिविंग थिंग और नॉन लिविंग क्या है और इनमें रिलेशनशिप क्या है। इट्स ऑल ऑफ दिस डिपेंड ऑन इच अदर। ये सारी चीज़ें क्या होती है एक दूसरे पर डिपेंड करती है। दैट मीन्स फिश लिव इन द वाटर, फिश क्या है वाटर में रहता है, अगर वाटर में तो फिश रहेगा नहीं रहेगा। That means elephant depend on the forest tree, क्या फॉरेस्ट और प्लांट पर डिपेंड करते हैं। अगर फॉरेस्ट प्लांट नहीं है तो ये नहीं रह सकते। वैसे ही जितने भी इट्स ऑल ऑफ लिविंग थिंग्स डिपेंडेंट ऑन द इच अदर, ये सारे क्या है दूसरे पर डिपेंड करते हैं, दूसरे पर क्या है निर्भर करते हैं। तो स्टूडेंट यू सी हियर द इन दिस वीडियो व्हाट इज द biodiversity and observe of the all living things and non-living things and what is the environment। हमने यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी देखा या और उसके साथ ही साथ इन्वायरमेंट देखा। इन्वायरमेंट क्या है उसका मीनिंग देखा, उसके साथ जो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स जितना चीज़ हम यहाँ पर देख ली है। टुडे स्टूडेंट नाउ नेक्स्ट वन इज लुक एट योर बोर्ड। Today student, we also seen the what is the environment, biodiversity, and what is the interaction of the living things and non-living things। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या है इंटरेक्शन मैं आपको बताया। इट्स ऑल ऑफ द पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, ये सब क्या हमारे इन्वायरमेंट के पार्ट है। एंड इट्स ऑल डिपेंड ऑन द ईच अदर, ये सारे क्या होते हैं एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इसको हमने यहाँ पे देखा स्टूडेंट। तो इसके साथ ही आज का वीडियो खत्म करते हैं। बट बिफोर द फिनिशिंग ऑफ दिस वीडियो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग योर होमवर्क। तो फ्रेंड एट योर होमवर्क, योर होमवर्क क्वेश्चन इज द what is the environment? The question is the what is the environment? Yes student, we also see in the first starting what is environment। हमने स्टडी में देखा था कि environment क्या है। तो you write your homework and complete the homework and send a group on the Friday। If you have any doubt, related to
this videos, you can ask me. So thank you so much.